हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर्स में हमने रियल नंबर्स रैशनल और इरेशनल की बात की थी। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू रैशनल पी बाय क्यू फॉर्मेट उसकी बात की थी। अब यहां पे करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ irrational numbers, the most important and technical on number line. The most important topic of that is there. How we represent irrational numbers on number line. I am starting from root 2. Represent root 2 on the number line. So this is there. We have two methods. One is with the help of Pythagoras theorem. Second, in forms of factors. That also we will discuss. So first we are talking about Pythagoras. So what is this, guys? जो नंबर हमने रिप्रेजेंट करना है, बेसिकली दैट इज हाइपोटेन्यूज। वो कंसीडर क्या करते हैं? वो हाइपोटेन्यूज है। तो इन दिस सिनेरियो हाइपोटेन्यूज इज रूट 2, है ना? तो व्हाट इज देयर? अब रूट 2 हम क्या लिख सकते हैं? रूट 1 प्लस 1 एंड 1 इज स्क्वायर ऑफ 1, स्क्वायर ऑफ 1। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या बनेगा? ये होगा रूट 2, ये होगा 1, ये होगा 1। 1 इज बेस, 1 इज परपेंडिकुलर। तो विद राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज इज रूट 2। तो दिस इज द अवर कॉन्सेप्ट। नाउ ड्रॉ ए नंबर लाइन। 0 1 यूनिट लगाया। अब यहां पे क्या है? ये तो बेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सपोज ये परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना? तो बेस इज 1 विद सेम परपेंडिकुलर इज ऑल्सो 1। तो सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, है ना? तो व्हाट वी हैव नाउ? बेस इज 1, परपेंडिकुलर इज 1 and hypotenuse is root 2, because with Pythagoras theorem we know this is root 2. Suppose here we have 2. Now this value is root 2, OB is root 2. Put compass here, draw arc. So whatever arc is there, where it will go, that is what is the value? If this is root 2, तो this is also root 2 because we have open compass this much, है ना? तो OC is root 2. It will be approximate 1.414, है ना? अब in factor theorems, in NCERT you have one article on that. What they said, write root 2 in form of two factors. Can we write 2 into 1? Now what to do? Draw two axes as coordinate, x और y axis, है ना? This is O. तो 2 1 का क्या कॉन्सेप्ट है? This is on left side of O, 1 is on right side. तो that is on you. You can take this is on left side, right side also, this on left side also. Now 2 units on left side, 1 2. This is O, है ना? 2 units on left side. Am I right? 1 unit on right side. Am I right? This we have done. 2 on left, 1. So what do you have to find? Midpoint of AB. अब AB कितना है? This is total 3 units. 3 units and midpoint will be at 1.5. So from this side 1 approximate here 1.5. So midpoint of AB is C. After that take C as a center and open CA or CB as radius. Draw semicircle. यहां पे कंपास रखो, इतना मेजर करो। जो सेमी सर्कल आपका बनेगा, जो सेमी सर्कल आपका बनेगा, है ना? तो दिस पार्ट इज रूट 2।
दिस इज √2। जितना वो वर्टिकल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, दैट पार्ट इज √2। तो व्हाट इज द आंसर? पुट कंपास हेयर, मेजर OP, ड्रॉ आर्क। तो OQ इज √2. This is the second concept. You can check in your NCERT, there is article of this by taking that as X. You can check that, guys. So this is the concept. Now we move to √3. अब √3 में देखो क्या डिफरेंस पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, अब √3 फाइंड करना है। फर्स्ट आई एम गोइंग विद पाइथागोरस, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, सो आई हैव केप्ट हियर। नाउ 3 वी कैन राइट 1 + 2। अब 1 इज वी कैन राइट, अब 2 किसका स्क्वायर है? √2 का। तो दिस इज 1 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर। नाउ व्हाट इज दैट? दिस कैन बी बेस, दिस कैन बी परपेंडिकुलर, और वाइस वर्सा, दिस कैन बी बेस, this can be perpendicular. So that is on you. What is easy for you? Now √2 we have found. Obviously √2 you have to find again in that scenario. OC is √2. So √2 we are considered as base. Now we need perpendicular 1 unit on C. We can draw. This is 1. With Pythagoras, this is √3 है ना। √2 वी हैव टेकन बेस। देखो हमारा क्या हुआ, हमारे पास OC हमारे पास √2 आ गया गाइस। यहां पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया CD एज अ 1 यूनिट, तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस दिस इज √3। नाउ पुट कंपास एट O एंड D, आर्क लगाओ, तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगी OE, दैट इज √3। इन दिस वे we can find √3. We have one more aspect of this case. एक तो ये मेथड है हमारे पास करने का। इसी में बोल रहा हूं, अभी मैंने फैक्टर की बात नहीं करी। इसी में we have one more step. How? First √2 फाइंड किया, 190 है, ये √2 आ गया है ना। अब क्या करेंगे, यहां पे राइट एंगल ड्रॉ करेंगे। यहां पे कितने यूनिट का? 1 यूनिट का, क्योंकि √3 क्या है? √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। √2 इज बेस, 1 इज परपेंडिकुलर, तो ये बन जाएगा √3। सपोज यहां पे 2 है, कंपास रखो यहां पे और आर्क लगा दो। जहां पे ये जाएगी, जहां पे जिस पॉइंट पे जाएगी, सपोज D, तो दैट इज √3। डिफरेंस क्या है गाइस? यहां पे मैं इसको हॉरिजॉन्टल लेके कर रहा हूं, वहां पे मैंने क्या कर दिया, उसको वर्टिकल ड्रॉ कर दिया। तो दिस इज द डिफरेंस। कॉन्सेप्ट आर सेम। यू कैन ड्रॉ √3 इन दिस वे ऑल्सो, यू कैन ड्रॉ √3 इन दैट वे ऑल्सो, दैट इज द सेम थिंग। नाउ आई एम गोइंग विद फैक्टर्स, यू कैन चेक हाउ मच इज दैट फॉर। अब √3 को हम क्या लिख सकते हैं? इन फॉर्म ऑफ 2 फैक्टर्स, 3 into 1। तो दिस इज देयर, सपोज दिस इज O। तो क्या था, एक को लेफ्ट, एक राइट, 3 यूनिट्स, 1 2 3, सपोज हियर। यहां पे क्या आ गया, 3 यूनिट्स लेफ्ट ले लिए, यू कैन टेक ऑन राइट, 1 यूनिट हमने राइट ले लिया है ना। नाउ व्हाट वी विल डू, मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB। तो टोटल ये कितने यूनिट्स हैं? 4। मिड पॉइंट कितने पे होगा? 2 पे, 1 2, ये आ गया मिड पॉइंट, दैट इज C। एम आई राइट? मिड पॉइंट फाइंड किया। नाउ व्हाट वी विल डू, C एज ए सेंटर एंड CA और CB एज रेडियस, ड्रॉ सेमी सर्कल। यहां पे कंपास, CA और CB एक ही बात है, क्योंकि C मिड पॉइंट है। एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो, हो गया। तो वर्टिकल एक्सिस को जितना वो इंटरसेक्ट करेगा गाइस, दैट इज
√3। अब कंपस O पे रखो P पे, क्योंकि एक्चुअली हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। वैसे तो वर्टिकल हमारा आंसर √3 भी आ गया, बट दिस इज अवर नंबर लाइन। तो नाउ दिस इज, सपोज दिस इज Q पॉइंट, OQ इज √3। दिस इज द बेनिफिट ऑफ factor concept which you have just article in NCERT, but in full-fledged how to use that I am telling। इसका benefit बहुत है guys। We will check and cross our next more examples। अब मैं बात कर रहा हूं √5 की। √4 is already 2, that is rational number। अब √5 with Pythagoras 1 + 4 है ना। दिस इज 1 स्क्वायर, दिस इज 2 स्क्वायर। एक को बेस लो, एक को परपेंडिकुलर। तो व्हाट वी हैव 0 1 2, बेस हो गया 2, सपोज यहां पे 3 आ गया, ये ले लिया। 1 यूनिट वहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक। तो नाउ दिस इज √5 है ना। पुट कंपास हेयर, ड्रॉ आर्क। तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगी दैट पार्ट इज OP √5। अब ये हो गई हमारी पाइथागोरस थ्योरम। नाउ वी मूव टू फैक्टर थ्योरम। अब √5 क्या आ गया, √5 × 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 यूनिट्स ऑन दिस, 1 यूनिट ऑन दैट साइड। इसकी स्पेशलिटी बताऊंगा आपको मैं। 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 यूनिट्स है ना, ये हो गया 1 यूनिट। तो व्हाट वी विल डू नाउ, मिड पॉइंट ऑफ AB। टोटल ये कितने यूनिट है 6, और मिड पॉइंट कितने पे आएगा 3 पे। 1 2 3 यूनिट, ये रहा मिड पॉइंट। तो अब क्या करेंगे, C पे कंपास रखी, एक मेजर की, सेमी सर्कल ड्रॉ किया। तो जितना ये इंटरसेक्ट करेगा, जितना भी आपका इंटरसेक्ट करेगा, उतनी हमने क्या कर देनी है, लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो दिस इज अवर √5। तो बोथ सिनेरियो इज इन फ्रंट ऑफ यू, बोथ सिनेरियो इज इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ आई एम मूविंग टू वन मोर क्वेश्चन टू मेकिंग इट मोर क्लैरिफाई। इसकी आपको स्पेशलिटी अब दिखाऊंगा, हाउ वी कैन मैनेज इन दैट केस। अब √6 आ गया, 1 + 5 है ना, और 2 + 4। तो इस केस में क्या करेंगे, ये बनता है। इस केस में ये बनता है। अगर आप ऐसे बनाओगे तो पहले आपको √5 बनाना पड़ेगा, जो अब हमने बनाया, फिर आपने √6 बनाना है। इस केस के अकॉर्डिंग आपको पहले √2 सॉल्व करना पड़ेगा, एज वी हैव डन इन वेरी फर्स्ट पार्ट। तो फिर उसके बाद 2 यूनिट्स है ना। अब उसमें क्या बेनिफिट है, √6 इसके फैक्टर, वी कैन हैव दिस, वी कैन हैव दिस है ना। तो अगर ये ले रहे हो तो 6 ऑन वन साइड, 1 ऑन अदर साइड। अगर ये ले रहे हो 3 ऑन वन साइड, 2 ऑन अदर साइड, यू कैन चेक विद दैट ऑल्सो। सपोज ये रहा है ना, 1 2 3, 3 ऑन वन साइड, 1 2, 2 ऑन अदर साइड। नाउ मिड पॉइंट ऑफ AB, ये टोटल कितने यूनिट्स हो गए 5, मिड पॉइंट आ गया 2.5, अप्रॉक्सीमेट। यहां पे कंपास ड्रॉ, तो दिस इज योर √6। अब कंपास यहां पे रखो, कंपैरिजन करो, तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेट हेयर। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस। अब देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ये, देन यू हैव टू सॉल्व दिस। बट इसमें आप डायरेक्ट कर सकते हो। और इसकी एक स्पेशलिटी और बताता हूं मैं दोस्तों, √35 आ गया, कितना चेक करोगे, और यहां पे क्या है, फैक्टर बनाओ, 5 7, 5 ऑन वन साइड, 7 ऑन अदर। डेसिमल्स आ गया, सपोज 6.2। अब डेसिमल में पाइथागोरस इज द टफेस्ट एवर जॉब, बट इन मल्टीप्लाई फैक्टर्स वी कैन डू। तो यहां पे क्या होगा, 2 ऑन वन साइड, 3.1 ऑन अदर साइड, एंड ड्रॉ। तो दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दैट फैक्टर 1 इन विच यू कैन ड्रॉ एवरी नंबर, एवरी डेसिमल पार्ट विद द हेल्प ऑफ जस्ट फैक्टर्स। और इसके लिए आपको पाइथागोरस के लिए सर्च करना पड़ेगा कि कौन सा पेयर है, कैसा इजी है, और कितने बनाने पड़ेंगे। नाउ
The most important one activity we have, spiral of Theodorus, a Greek mathematician, जिन्होंने एक एक्टिविटी दी है गाइज, इसको फाइंड कर, जो मैंने जस्ट एग्जांपल यूज की थी. आई एम टेलिंग यू हाउ. 0 1, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, और ये क्या आ गया, √2, है ना, √2 का गया ना. अब यहां पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये आ गया √3. यहां पे 1 यूनिट का ड्रॉ किया, ये बन जाएगा √4. सिमिलर यहां पे परपेंडिकुलर फिर ड्रॉ किया, ये बन जाएगा √5. सिमिलर √6, √7, √7. तो इन दिस वे ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा स्पाइरल बनेगा आपके पास इन दिस वे. तो दिस इज द स्पाइरल ऑफ थियोडरस, जिसमें उन्होंने एक एक्टिविटी में सारे √6, √7, √8, √9, √10, √11 ये ऐसे एज ए स्पाइरल इट विल बी इंक्रीजिंग. तो यू कैन फाइंड नाउ √2, यहां से √3, √4. तो इन दिस सिनेरियो you can find the irrational number, or you can draw the irrational number on number line with the help of Pythagoras and with the help of factors. Thank you.